Hello everyone. Today is our fourth lecture and this is your second chapter called Principle of Management. Your one chapter is completed, so you have to prepare your notes. Already most of the students are already prepared their notes. I gave you some questions related to chapter number 1. Make sure you attend that question or you write that question. If you are not written that question, then you have to write in your first unit, then you start your second chapter. Today I will provide you the lecture and PDF also of the second lecture. So let's begin with this. Our second lecture is Principle of Management. Principle of Management means what? Principles means what? The fundamental truth that helps to decide for future goals. We called it the principles. So everybody has a principle, like somebody has a principle that he is not telling lie to anyone. Somebody has a principle, he will obey his parents always. Somebody has a principle that he always do work by enthusiasm. So these are the principles. The principles always helps us to make life simple or to achieve our goals. That are the principles. But there isn't some confusion related to the principle as the values. What I am telling now, that are all values. We called it principles, but this all are values. Why I called it the values? Because these are the nature of a human behavior or the guidelines or a moral values, we called it. So principles are somehow different from values, but more similar, or we can say that it helps to achieve the goal. So in this chapter, what you have to learn? You have to learn the concepts of management principle. What are the concepts behind it? Second thing, what are the nature and significance? Significance, you can say the importance also. And next, there is a two types of principles. We can say that the two authors who gave you the principles, who pronounced the principles. One is Fayol, Henry Fayol, another one is F.W. Taylor. Henry Fayol's principle of management, we called it the general principle of management, and Taylor's scientific principle of management. तो याद रखना, Fayol is a principle जनरल मैनेजमेंट के लिए, टेलर्स के जो प्रिंसिपल है वी कॉल्ड इट साइंटिफिक मैनेजमेंट, इस वजह से हम उन्हें साइंटिफिक मैनेजमेंट का प्रिंसिपल कहेंगे. और इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये हमें पढ़ना है. तो हम देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में व्हाट आर द कंसेप्ट्स. तो सबसे पहले मैनेजमेंट प्रिंसिपल मैंने आपको पहले ही बोल दिया है, दैट इज, आपको लिख के आना है, मैं हाईलाइट कर रहा हूं ये सारी चीजें. प्रिंसिपल्स आर स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ. स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ होता है. इससे क्या होगा, गाइडलाइन मिल जाती है मैनेजर्स को कि क्या डिसीजन लेना है, प्लानिंग में क्या डिसीजन लेना है, ऑर्गेनाइजिंग में क्या डिसीजन लेना है, आगे डायरेक्शन में क्या डिसीजन लेना है, ये सब चीजें गाइडलाइन आपको मिल जाती है. गॉट इट. नेक्स्ट, दिस प्रिंसिपल्स कॉल्ड जनरल गाइडलाइंस. बेटा ये जनरल गाइडलाइंस होती है. ठीक है, आप जब प्योर साइंस में और मैनेजमेंट के प्रिंसिपल में और प्रिंसिपल ऑफ साइंस पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा. नीचे हमारा थर्ड जो ऑप्शन है. नेक्स्ट, ये गाइडलाइंस है, पर गाइडलाइन क्या कर रही है, वैल्यूएबल डिसीजन लेने में और अप्रोप्रिएट स्टेप्स लेने में, ताकि आप डिजायर गोल्स को अचीव कर पाओ. तो ये कंसेप्ट है बिहाइंड प्रिंसिपल्स के. जैसे हम लोग स्कूल्स में सुनते होंगे रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं. रूल्स रेगुलेशंस क्यों होते हैं, ताकि डिजायर्ड गोल अचीव हो सके, ऐसी स्टेप्स हमें मिले ताकि हम उस गोल तक पहुंच पाए. तो वहां पे सेमेटिस हमारा प्रिंसिपल काम करता है. बट प्रिंसिपल लिटिल बिट रिजिड भी होते हैं और कुछ प्रिंसिपल फ्लेक्सिबल भी होते हैं. कुछ ऐसे होते हैं जो जिसको मॉडिफाई किया जा सकता है. कुछ प्रिंसिपल ऐसे होते हैं जिसको मॉडिफाई नहीं किया जा सकता. जैसे कि साइंस के जो प्रिंसिपल होते हैं उनको यूजली नहीं किया जा सकता. जैसे प्रिंसिपल की मैं बात करूं, यूजली प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा था हमने, ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स. अब उसको मॉडिफाई नहीं किया जा सकता. अगर उसको देखा जाएगा तो हमें पता है कि अगर ऊपर से कोई भी थिंग्स या चीज अगर नीचे गिराई जाएगी तो बेटा वो नीचे ही जाने वाली है, वो ऊपर रिवर्ट नहीं जाने वाली. तो इसको मॉडिफाई कहीं नहीं किया जा सकता. ठीक है,
तो ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिसको हमें ध्यान में रखना है और जिसके बेस्ड मैनेजमेंट काम करेगा। अब जब आप प्रिंसिपल पढ़ोगे तो बहुत मजा आएगा, आपको समझ में आएगा कि आप प्रिंसिपल कैसे काम कर रहे हैं। अब सबसे पहले प्रिंसिपल और वैल्यू में क्या डिफरेंस है तो मैंने बता दिया है। प्रिंसिपल तो स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ है, बट वैल्यूज क्या होती है? वैल्यू होती है डिजायरेबल या मोरल कॉनोटेशन। मतलब मोरली जो आप चाहते हो, मोरली जो कनेक्शन आप चाहते हो, जो डिजायर है आपकी, वो वैल्यूज होती है। जो सही होता है, आपको लगता है कि हाँ ये करना है, ये सही है। प्रिंसिपल जो होता है वो स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ होता है, होना चाहिए ऐसा और ऐसा ही होगा। दोनों में ये डिफरेंस है। नेक्स्ट, प्रिंसिपल बात करती है एथिकली। मतलब अगर मैं प्रिंसिपल की बात करूं, सॉरी, वैल्यूज बात करती है एथिकल, मतलब एथिक्स से रिलेटेड बात करती है, सही गलत की बात करती है। बट प्रिंसिपल जो बात करते हैं वो टेक्निकल बात करते हैं। एक बात ध्यान रखना, मैंने उसको आगे पीछे लिख दिया है, पर एथिकल इज रिलेटेड टू द वैल्यू aspects and technical is related to principal aspect. नेक्स्ट, प्रिंसिपल्स कैसे आते हैं? प्रिंसिपल्स हमेशा रिसर्च और एक्सपेरिमेंट के थ्रू आते हैं। जैसे कि अगर कोई प्रिंसिपल है कि हाँ, वही वाला हमारा एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, ग्रेविटेशनल फोर्स। रिसर्च की हुई होगी, उस पर एक्सपेरिमेंट किया होगा, अगेन एंड अगेन चीजों को नीचे गिराया होगा, रिसर्च किया होगा, प्लेसेस चेंज हुई होगी, थिंग्स चेंज हुआ होगा, ये सब कुछ चेंज करके एक्सपेरिमेंट करके लास्ट में प्रिंसिपल निकला कि हाँ ये प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स है कि अर्थ में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, अगर आप ऊंचाई से कोई चीज गिराओगे तो वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगा। ये रिसर्च और एक्सपेरिमेंट से आता है। बट वैल्यू क्या होती है? वैल्यू होती है बेटा कॉमन प्रैक्टिस, जो मोस्ट ऑफ द पीपल जो चूज कर लेते हैं उसी को वैल्यू कहा जाता है। मोस्ट ऑफ द पीपल, जैसे ज्यादातर लोगों को लगता था कि झूठ नहीं बोलना चाहिए तो उन्होंने चूज कर लिया, पर बहुत सारे लोग आज भी झूठ बोलते हैं। तो कॉमन प्रैक्टिस अगर कर ली जाती है तो वो वैल्यू हो जाती है, पर वो प्रिंसिपल नहीं होता। पहला चीज, कभी कभी डिफरेंस बिटवीन पूछ लेता है इन दोनों पे, इस वजह से जरूरी है। नेक्स्ट, प्रिंसिपल्स वर्सेस टेक्निक्स। अब टेक्निक्स आएगी बहुत सारी जगह, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? तो पहली बात, प्रिंसिपल तो जहां आता है आपको एक दो चीजें लिख दी है, स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ होता है, गाइडलाइंस होती है फॉर डिसीजन मेकिंग। इतना तो प्रिंसिपल के बारे में आपको लिखना ही है। नेक्स्ट चीज, व्हाट आर द टेक्निक्स। तो टेक्निक्स का मतलब होता है बेटा, अब प्रिंसिपल्स तो गाइडलाइन होगी कि ऐसा ऐसा करना है, ठीक है, पर किसके थ्रू करेंगे, क्या चीज है जो करेंगे। लाइक मुझे पता है कि दिस आर द बाइक, इस बाइक पे बैठूंगा मैं और पहुंच जाऊंगा मेरे डेस्टिनेशन पे, ये बाइक है, ये बाइक मुझे पहुंचा देगी। बट बेटा अब उस बाइक में क्या क्या चीजें चाहिएगी आपको? आपको मेथड्स और प्रोसीजर आनी चाहिए उस बाइक को चलाने की। ऐसा नहीं कि बाइक पे बैठोगे और सीधे चले जाओगे। बाइक को स्टार्ट करना पड़ेगा, प्रोसीजर, चाबी घुमानी पड़ेगी, सेल्फ स्टार्ट है तो उसको दबाना पड़ेगा, आपको रेस देनी पड़ेगी, गियर चेंज करना पड़ेगा। दिस आर द टेक्निक्स टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल। माइनर सा डिफरेंस है, पता चला आपको? गाइडलाइंस मतलब हमें पता है कि हमें यहां से वहां जाना है, दैट इज आवर गोल, और उस गोल को अचीव करने के लिए जो मेथड्स और प्रोसीजर यूज होगा उसको बेटा हम लोग क्या बोलेंगे? टेक्निक्स बोलेंगे। नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन है हमारा मैनेजमेंट प्रिंसिपल वर्सेस प्रिंसिपल ऑफ प्योर साइंस। अब बेटा मैनेजमेंट जो होता है वो रिजिड नहीं होता, प्योर साइंस रिजिड होती है। मैंने बोला है आपको कि जो डिसीजंस लिए जाते हैं साइंस साइंटिफिकली, वो सारे डिसीजन जो होते हैं वो रिसर्च और एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे होते हैं। बट मैनेजमेंट में क्या होता है बेटा? रिसर्च एक्सपेरिमेंट लगता है बट सिचुएशन टू सिचुएशन वो चेंज होता रहता है, मॉडिफिकेशन आप कर सकते हैं। तो इसलिए ऐसा बोला जाता है कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल रिजिड नहीं होते, फ्लेक्सिबल होते हैं, क्योंकि ये ह्यूमन बिहेवियर से डील करते हैं, सिचुएशन से डील करते हैं, सिचुएशन के अकॉर्डिंगली चेंज हो जाते हैं। बट साइंस के प्रिंसिपल जो होते हैं वो कैसे होते हैं? वो रिजिड होते हैं, वो सिचुएशन में चेंज नहीं होते हैं, वो एज इट इज लगते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस है कि वैलिड नॉट वैलिड यूनिवर्सली। मतलब मैनेजमेंट प्रिंसिपल अप्लीकेबल तो यूनिवर्सली। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस तुम ध्यान में रखना, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है यहाँ पे। मैनेजमेंट प्रिंसिपल अप्लीकेबल यूनिवर्सली, ये आपने पढ़ा था वहां पे पिछले इसमें, अप्लीकेबल सब जगह होंगे, बट एज इट इज अप्लीकेबल होंगे ये जरूरी नहीं। समझ पा रहे हो? जैसे कि मैं आगे अपन पढ़ेंगे यूनिटी ऑफ कमांड या फिर स्केलर चेन, ठीक है? ये कुछ प्रिंसिपल्स के नाम में बता रहा हूं। यूनिटी ऑफ कमांड, कहीं कहीं यूनिटी ऑफ कमांड काम कर जाता है, मतलब एक बंदे से ही ऑर्डर आना चाहिए, सेम ऑर्डर आना चाहिए।
पर कहीं कहीं ऐसा होता है कि नहीं, दो बॉस होते हैं, तो वहां पे दोनों बॉस की आपको सुननी पड़ती है। यूनिटी ऑफ कमांड कहीं कहीं काम नहीं करता, तो अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन हो जाता है। बट अगर साइंस के प्रिंसिपल की बात करूं तो मॉडिफिकेशन वहां पे पॉसिबल नहीं हो पाता। तो ये डिफरेंस बिटवीन है, कुछ पढ़ लेना बुक में भी, ये आपको आपको हेल्प करेगा। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पे, नेचर। व्हाट इज द नेचर ऑफ साइंटिफिक, वी कैन से मैनेजमेंट प्रिंसिपल। तो सबसे पहली बात मैंने पहले ही बोला था, पिछली स्लाइड को देख लेते हैं हम लोग। पिछली स्लाइड में मैंने बोला था आपको, यूनिवर्सली वैलिड नहीं है, हर जगह लगेंगे जरूरी नहीं है कि हर जगह वैलिड हो जाएंगे, बट अप्लीकेबल हर जगह हो सकते हैं। इस वजह से यहां आया है यूनिवर्सली अप्लीकेबल। अब जब तुम इसका डिटेल पढ़ोगे तो डिटेल में एक बार समझा देता हूं कि यूनिवर्सली अप्लीकेबल का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन छोटा हो या बड़ा, चाहे वो प्रॉफिट कमाने के लिए किया जा रहा हो या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो या गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो मैन्युफैक्चर कर रहा हो या सर्विस दे रहा हो, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल सब जगह लगते हैं। स्कूल्स में लगेंगे, कॉलेज में लगेंगे, फैक्ट्री पे लगेंगे, शॉप्स पे लगेंगे, सब जगह लगेंगे। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल यूनिवर्सली अप्लीकेबल होता है। दूसरा चीज, जनरल गाइडलाइंस होती है बेटा, स्पेसिफिक नहीं होता है। स्पेसिफिक इसलिए नहीं होता है क्योंकि अगर स्पेसिफिक गाइडलाइन कर दी तो रिजिड हो जाएंगे, और मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स विल नेवर रिजिड, दे ऑलवेज बी फ्लेक्सिबल। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल इसलिए क्या होते हैं, जनरल गाइडलाइन होती है, स्पेसिफिक गाइडलाइन नहीं होती। इस वजह से हम, ऐसा नहीं है कि ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल है तो हम बाउंड हो चुके हैं कि उसको सारी सिचुएशन में यूज करें। हम सिचुएशन टू सिचुएशन मैनेजमेंट के प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंगली प्रिंसिपल्स को यूज करते हैं और हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं। नेक्स्ट, फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। ये मैनेजमेंट के प्रिंसिपल भी प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट से निकले हैं, ठीक है। बार बार ऑब्जर्वेशन किया है इन मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को, तब जाके कुछ लीडर्स और स्कॉलर ने इन प्रिंसिपल को निकाला है। क्योंकि सब अपनी अपनी बात करते हैं, पर एक बात जो सब लोग कहते हैं उस पर हम लोग एग्री हो जाते हैं कि हाँ यार ऐसा करते हैं तो ये होगा। लाइक पीस रेट प्लान करके एक चीज आएगी आपके इसमें। पीस रेट प्लान का मतलब होता है कि आपको जब भी मैन्युफैक्चर करना है ना, तो आपको पर पीस का प्राइस देना है उस मजदूर को। इससे क्या होगा, आपको जैसे कि दो अगर लेबर काम कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा समझ में आएगा, दो लेबर काम कर रहे हैं, फ्लेक्सिबल भी समझ में आ जाएगा, बिहेवियरल साइंस, ये बहुत सारा चीजें इसमें समझ में आ जाएगी। जनरल गाइडलाइन क्या बोलता है, पीस रेट प्लान बोलता है कि आपको जब भी अगर लेबर को पैसा देना है तो पर पीस के अकॉर्डिंगली आपको देना चाहिए। अब ये कहां काम करेगा, जहां पे प्रोडक्ट बाय पीस बन रहा हो। मतलब जैसे अगरबत्ती इंडस्ट्री है, मोमबत्ती इंडस्ट्री है, वहां पर पीस बनता है, वहां आप पर पीस उनको दे सकते हो कि ठीक है आप इतना पीस बनाओगे तो आपको पर पीस 5 रुपए मिलेगा। उससे क्या होगा, लेबर ज्यादा काम करेगा, इफेक्टिवली काम करेगा। क्यों? क्योंकि उसको ज्यादा से ज्यादा पैसा मिलेगा अगर वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बनाता है। इसके अपोजिट, अगर मैं पीस रेट ना दूं, मैं उसको बोलूं कि ठीक है आपको पर दिन दिन के 300 रुपए मिलेंगे, तो क्या वो ज्यादा से ज्यादा वर्क करने की कोशिश करेगा? क्या वो नहीं करेगा? क्यों? क्योंकि उसको पता है ना, मुझे सुबह आना है, दिन भर यहाँ पे काटना है, जितना भी मैं मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ वो कर लूंगा, जितनी भी अगरबत्ती बनाना है मैं बना लूंगा, उसके बाद मुझे शाम को घर जाना है, घर जाते वक्त मुझे 300 रुपए लेना है और घर निकल। यहाँ पे पीस रेट वर्क कर रहा है। बट क्या ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब मैं बोल सकता हूं कि जैसे सैलरी मिलती है पर्सन को, मैनेजर्स को, उनको पीस रेट हम लोग दे सकते हैं क्या? उनको नहीं दे सकता, उनको मंथली सैलरी ही देना पड़ेगा, पर डे सैलरी वहां पे काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे पीस रेट वर्क नहीं करेगा। तो आपने क्या किया, प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट निकाला कि कुछ जगह तो पीस रेट प्लान बहुत अच्छा है, कुछ जगह पीस रेट प्लान काम नहीं करेगा, क्योंकि वहां पे प्रोडक्ट के पीसेस अवेलेबल नहीं है, वहां पे वर्क जो होता है वो बल्क में होता है, तो आप नहीं कर सकते उसको पार्ट में डिवाइड। नेक्स्ट, पीस रेट प्लान समझ में आया बेटा, है ना। उसके बाद प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट से आता है, प्रॉपर एक्सपेरिमेंट होता है, डिफरेंट कंडीशन में होता है, तो उससे हमें क्या निकलता है, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स निकले। जब मैनेजमेंट प्रिंसिपल पढ़ेंगे उसके बाद वापिस से आपका होमवर्क रहेगा नेचर और सिग्निफिकेंस को एक बार रीड आउट करना, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल होते हैं तो मैंने बहुत बार बोला है, डायनेमिक रहता है मैनेजमेंट प्रिंसिपल। जहां भी वर्ड डायनेमिक आएगा अभी कॉपी में नोट कर लेना। डायनेमिक का मीनिंग होता है, बहुत सिंपल मीनिंग बता रहा हूं, चेंज अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट और सिचुएशन। नोट कर लेना, डायनेमिक मीन्स चेंज अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट और सिचुएशन।
तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल डायनेमिक होते हैं, स्टैटिक या रिजिड नहीं होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। ठीक है, मेनली बिहेवियर होते हैं, क्यों? क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर से इन्फ्लुएंस होते हैं। कहीं कहीं प्रिंसिपल काम करेगा ह्यूमन बिहेवियर पे, कहीं कहीं नहीं काम करेगा। जैसे अगर मैं बात करूं लीडरशिप क्वालिटी की, तो लीडरशिप क्वालिटी में बोला जाता है कि आपने हिंदी में सुना होगा शाम दाम दंड भेद, किसी भी तरीके से काम निकलवाना होता है। अब ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। कोई पर्सन को अगर आप पोस्ट दे देते हो, अगर डेजिग्नेशन दे देते हो, अगर उसको पद दे देते हो, तो वो खुश हो जाता है, बहुत अच्छे से काम करता है। पर कोई पर्सन को ये रहता है कि मुझे पोस्ट मत दो आप, तो मुझे सैलरी इंक्रीज कर दो, मैं काम बहुत अच्छे से कर लूं। कहीं पे पोस्ट वर्क कर रही है, कहीं पे सैलरी वर्क कर रही है, पैसा वर्क कर रहा है। तो ये बिहेवियर साइंस है जो ह्यूमन बिहेवियर से अटैच करता है। ये कहा क्यों यूज आता है? क्योंकि आप अपने रिसोर्सेस को ज्यादा से अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट कोज और इफेक्ट रिलेशनशिप होता है। अब ये दो वेरिएबल है। कोज और इफेक्ट रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है कि रिजल्ट हमेशा सेम नहीं होते। मतलब कारण, कोज का मतलब क्या होता है? कारण, और कारण के बाद उसका इफेक्ट क्या रहेगा। तो आपको सबसे पहले रीजन देखना पड़ेगा कि क्यों हो रहा है ऐसा। उस रीजन के बाद आपको पता चलेगा कि हाँ इस रीजन, ये रीजन है, इस वजह से ये इफेक्ट हुआ है। तो आपको हमेशा जब भी आप मैनेजमेंट प्रिंसिपल लगाते हो सिचुएशन में, तो वहां पे आपको देखना रहता है कि इज देयर इज एन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जरूरी नहीं है कि अदर अदर सिचुएशन में भी सेम लगे। मे बी पॉसिबल वो सिनेरियो चेंज हो जाता है, जैसे हमने पढ़ा है फ्लेक्सिबल होता है, तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं रहता है। तो एक सिचुएशन में जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, वो अदर सिचुएशन में अदर कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट कंटिंजेंट। कंटिंजेंट का मतलब क्या होता है बेटा? सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करते हैं। मतलब ऐसा है कि जो भी प्रिंसिपल है वो रिक्वायर्ड सिचुएशन में काम करेंगे, जरूरी नहीं है कि वो उस अदर देन सिचुएशन में भी काम करेंगे। नेक्स्ट थिंग, ये जो प्रिंसिपल्स हैं, ये प्रिंसिपल डिपेंड करते हैं मैनेजर टू मैनेजर। कोई मैनेजर इन प्रिंसिपल को बहुत अच्छे से यूज कर लेता है, कोई मैनेजर जो इन प्रिंसिपल को यूज नहीं कर पाता उतना इफेक्टिवली। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि दिस प्रिंसिपल्स आर कंटिंजेंट बिकॉज इट बेस्ड ऑन सिचुएशन टू सिचुएशन। ये नेचर हो गया। नेक्स्ट हम लोग सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंट पे आ जाते हैं। व्हाट आर द सिग्निफिकेंस? तो सबसे पहले प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। मतलब मैनेजर्स जो होते हैं इन प्रिंसिपल्स की वजह से अपने नॉलेज को इंप्रूव करते हैं, और सिचुएशन में किस सिचुएशन में कौन सा प्रिंसिपल लगेगा, ये प्रिंसिपल हेल्प करते हैं सिचुएशन टू सिचुएशन। दूसरा चीज, इन प्रिंसिपल्स की वजह से मैनेजर जो होते हैं वो रियलिटी को पहचानते हैं, वो अपनी पास्ट मिस्टेक्स को सुधारते हैं और रियल सिचुएशन को समझते हैं, और उन रियल सिचुएशन में आने वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में ये प्रिंसिपल्स मदद करते हैं। ये इंपॉर्टेंस है इनकी, ये सिग्निफिकेंस है। नेक्स्ट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज या इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन आपको दिया हुआ है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब ये होता है कि जितने भी प्रिंसिपल्स आप पढ़ोगे आगे, सारे प्रिंसिपल्स कहीं ना कहीं आपको ये चीज बताएंगे कि कम अगर आपके पास रिसोर्स है, कम अगर आपके पास मेन पावर है, कम अगर आपके पास में रॉ मटेरियल है, मशीनरी लिमिटेड है, वर्कलोड ज्यादा है, तो किस तरीके से मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को यूज करके आप ऑप्टिमम मतलब मैक्सिमम, ऑप्टिमम का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम यूज कर सको उस रिजल्ट को, ताकि मैक्सिमम आउटपुट आपको मिले। तो ये भी क्या है बेटा? इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट, मैंने इसको अलग पॉइंट बना दिया है। मैनेजमेंट मैनेजर को हेल्प करता है ताकि एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिव हो जाए, ताकि जो मैनेजमेंट का डायरेक्शन का और कंट्रोलिंग का फंक्शन है वो फंक्शन और अच्छे से काम करे। साइंटिफिक डिसीजंस, मैनेजमेंट हेल्प करते हैं साइंटिफिक डिसीजंस में, लॉजिक पे काम करते हैं, क्यों करना है। पीस रेट प्लान हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, हम लोग नहीं यूज कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं। ये ब्लाइंड फेथ पे बिलीव नहीं करता, ये हर चीज को साइंटिफिक डिसीजंस के साथ वर्क करता है। इसलिए मैंने पिछले इसमें बोला था कि ये जो प्रिंसिपल है बेटा, ये प्रिंसिपल किस वजह से आए? ये प्रिंसिपल रिसर्च की वजह से आए। ये प्रिंसिपल अगेन एंड अगेन चेक किया है आपने, उसके बाद अप्लाई किया है। हेल्प इन डायनेमिक एनवायरनमेंट बहुत अच्छे से समझ लिया है
कि चेंजिंग अगर इन्वायरमेंट हो रहा है, कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट है, तो आपको ये प्रिंसिपल इजी रहेंगे, क्योंकि डायनेमिक प्रिंसिपल इटसेल्फ हैज अ डायनेमिक बोल सकते हैं क्वालिटी, तो ये डायनेमिक इन्वायरमेंट में भी उतने अच्छे से काम करेंगे। नेक्स्ट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने में भी काम करते हैं, क्योंकि ये प्रिंसिपल्स आप पढ़ोगे, एक प्रिंसिपल वहां पे जो प्रिंसिपल होगा आपका रेम्यूनरेशन से रिलेटेड, तो वहां पे आप पढ़ोगे कि भैया रेम्यूनरेशन जो होता है वो एम्प्लॉयज को फेयर दिया जाना चाहिए ताकि वो अच्छे से काम कर सके। तो वो जो रेम्यूनरेशन टू पर्सनल है या एम्प्लॉय है, उनके केस में ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, तो ये इंपॉर्टेंस है। और लास्ट इंपॉर्टेंस जो है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन और रिसर्च की भी ये बात करते हैं कि मैनेजमेंट को खुद को इन प्रिंसिपल से ट्रेन करना, एजुकेशन करना, और मैनेजमेंट इन प्रिंसिपल्स को, या फिर बोल सकते हैं मैनेजर इन प्रिंसिपल्स को अलग अलग सिचुएशन में यूज करता है ताकि इन प्रिंसिपल्स को और अच्छा ज्यादा यूटिलाइज किया जा सके और अच्छा ज्यादा रिटर्न इस प्रिंसिपल से मिले। ये आपके इंपॉर्टेंस है। उसके बाद हम लोग सीधे आ जाते हैं फ्यूल पे। मैंने इसको फ्यूल्स बायो लिखा है ताकि आप इंस्टाग्राम से कनेक्ट कर पाए बायो। सो व्हाट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ हेनरी फ्यूल? ऑब्जेक्टिव आ सकता है, हेनरी फ्यूल वॉज एन फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर। हु इज द फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर? ही कैन आस्क यू Henry Fayol, F.W. Taylor. He can ask you about the Mary. He can ask you about the principles of cluster ray. तो ये चार कुछ ऑप्शन है जो मैनेजमेंट से रिलेटेड पर्सन है। तो अब वो आपको कंफ्यूज करेगा कि कौन था फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर। तो आपको दो चीजें समझ में आ रहा है, हेनरी फ्यूल फ्रेंच के थे, दूसरा चीज हेनरी फ्यूल माइनिंग इंजीनियर थे, माइनिंग एग्जीक्यूटिव थे, ऑर्थर और डायरेक्टर्स थे माइन के। उन्होंने डेवलप की थी जनरल थियरी ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी पूछ सकता है। और इसको क्या नाम दिया था? इसको फेयोलिज्म नाम दिया था, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, हेनरी फ्यूल को फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। और एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसने फर्स्ट 4 फंक्शन मैनेजमेंट के पता लगाए थे? फर्स्ट 4 फंक्शन में कौन कौन से? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। ये 4 फंक्शन ऐसे हैं जो सबसे पहले हेनरी फ्यूल ने पता किए थे। नेक्स्ट, कितने प्रिंसिपल्स इन्होंने दिए हैं? तो आपको फ्यूल से 14, एफ फॉर 14, एफ फॉर फ्यूल, एफ फॉर 14, एफ फॉर फ्यूल, ये एडमिनिस्ट्रेशन के और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इन्होंने दिए थे 14 प्रिंसिपल्स। अब हेनरी फ्यूल के 14 प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं, तो जरा एक बार एक लाइन से पढ़ लेते हैं। डिवीजन ऑफ वर्क, वर्क को डिवाइड करना, मैं एक एक करके आगे एक्सप्लेन करूंगा आने वाले लेक्चर्स में। ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, पहले मैंने एक डायग्राम बनाया था, उसको चेक करना है एक बार। ऑथोरिटी जो होती है वो ऊपर से नीचे जाती है, मतलब पापा आपको ऑथोरिटी दे सकते हैं, है ना, कि ये काम आपको करना है, ये तेरे पास ऑथोरिटी है कि तू कर सकता है। तू शॉप पे बैठ, तू कस्टमर्स को डील करना है, ये तेरे पास ऑथोरिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी है तुझे, कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि तुम्हें देखना है कि ये जो वर्कर काम कर रहे हैं ये सही से काम करें, और अगर नहीं कर रहे हैं तो इतनी ऑथोरिटी है कि इन वर्कर को तुम कह सको कि तुम सही से काम करो। अगर पापा ये बोलेंगे तुम शॉप पे बैठना, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी है कि तुमको बस चेक करते रहना है कि शॉप पे कौन आ रहा है कौन जा रहा है बस, और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेबर से रिलेटेड नहीं देते हैं वो, तो लेबर अगर नहीं काम कर रही है तो तुम्हारे पास अथॉरिटी नहीं है उनको डील करने की, जब तक पापा स्पेसिफिकली ना बोले या फिर डीम्ड ना हो। तो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन सबसे ज्यादा जरूरी है अगर आपको गोल को अचीव करना है। डिसिप्लिन अगर में बोले या मैनेजमेंट लाइफ में बहुत जरूरी है। नेक्स्ट जो आता है वो आता है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है एक ही कमांड, मतलब एक ही बॉस अगर कमांड दे तो बेटर है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सिंगल बॉस अगर डायरेक्शन दे रहा है तो बेटर है। इस सबको एग्जांपल के साथ विल एक्सप्लेन। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, इसका मीनिंग एक शब्द में समझाता हूं। अगर आपका कोई गोल है तो वो आपका गोल जो होता है वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल से आपको चेंज करोगे तभी जाके आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का बोल सकते हैं हम लोग गोल है वो अचीव हो पाएगा। मतलब अगर इंडिविजुअली सबका गोल अलग अलग है, 5 पार्टनर है, पार्टनरशिप फर्म बनाई, ऑर्गेनाइजेशन तैयार किया, 5 ही पार्टनर के गोल अलग अलग है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट है, तो क्या वो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल होगी, क्या वो पार्टनरशिप फर्म सक्सेसफुल होगी? नहीं होने वाली। क्यों? क्योंकि उनको एक गोल बनाना पड़ेगा चारों पांचों को मिलके, जिसको हम लोग जनरल गोल बोलेंगे। तो उस इंडिविजुअल गोल को उनको सबऑर्डिनेट का मतलब होता है रिप्लेस करना,
सबऑर्डिनेशन का मतलब होता है रिप्लेस ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, इंडिविजुअल गोल टू जनरल इंटरेस्ट, जनरल गोल से रिप्लेस करना है। किसको रिप्लेस करना है? इंडिविजुअल गोल को, ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सकें। रेम्यूनरेशन टू द एम्प्लॉय शुड बी फेयर। आपको ऐसा नहीं है कि बहुत कम उनको रेम्यूनरेशन दे रहे हैं, बहुत काम करवा रहे हैं, या फिर बहुत ज्यादा किसी को पैसा दे रहे हैं एक्सट्रीम, जिसकी जरूरत नहीं है। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है सिंगल बॉस जिसके हाथ में सारे डिसीजन है। एक एग्जाम्पल दूंगा, लाइफ टाइम याद रहेगा, जैसे रिलायंस है, रिलायंस में मुकेश अंबानी जी है। अब रिलायंस में रिलायंस फ्रेश का ऑफिस है नीमच में, नीमच में रिलायंस फ्रेश में नल खराब हो गया है कोई, फॉर एग्जाम्पल, सीली सा एग्जाम्पल है पर याद रहेगा, नल में कोई मिस्टेक आ गई है, उसके लिए प्लम्बर का रिक्वायरमेंट है। वहां का मैनेजर, क्योंकि रिलायंस में मुकेश अंबानी ने बोला है कि भैया जो भी छोटे से बड़ा डिसीजन है मैं लूंगा, नल खराब हो गया, यहाँ का मैनेजर पहले कॉल करेगा मुकेश अंबानी को कि सर नल खराब हो गया, प्लम्बर बुला लूं क्या, इतनी फीस ले रहे हैं, वो बोलेगा हाँ ठीक है बुला लो, कोई दिक्कत नहीं। ये होता है सेंट्रलाइजेशन, सिंगल हैंड में पावर होना, पावर इन अ सिंगल हैंड और अ फ्यू हैंड, मैनेजमेंट पे पावर होना। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है, मुकेश अंबानी ने कहा हुआ है छोटे मोटे फैसले इस अमाउंट तक या इस लेवल तक में आप खुद ले सकते हो, इसको बोलेंगे डिसेंट्रलाइजेशन, पावर इन मेनी हैंड। स्केलर चेन का प्रिंसिपल डायग्राम से बेटर समझ में आएगा। ऑर्डर का मतलब वही होता है, ऑर्डर में चलना चाहिए। इक्विटी का मतलब होता है बेटा सबको साथ रह के चलना है। स्टेबिलिटी और पर्सनल का मतलब होता है एम्प्लॉइज का डर नहीं होना चाहिए, उनको बार बार ये नहीं बोलना कि आपको जॉब से निकाल देंगे, जॉब से निकाल देंगे, ऐसा नहीं बोलना उनको, ताकि वो क्या हो सके, वो फ्री माइंड से वर्क कर सके। नेक्स्ट होता है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब अगर ऑर्गेनाइजेशन कुछ प्लान करते हैं, जैसे कि तुम्हारे स्कूल्स में कुछ प्लान हो रहा है, प्लान हो रहा है मतलब फॉर द एग्जांपल के मान लो तुम्हारे स्कूल्स में स्पोर्ट्स का प्रिपरेशन चल रहा है कि स्पोर्ट्स कंडक्ट करवाएंगे, तो अब ऑर्गेनाइजेशन में अगर ऐसा कोई प्लान हो रहा है कि न्यू एक्टिविटी करनी है, न्यू चीज करनी है, तो आप इनिशिएट लो। जो जो भी इंप्लॉय इनिशिएट लेगा, अगर सारे ही इनिशिएट लेंगे तो वो प्रोग्राम बहुत अच्छे से सक्सेसफुल हो जाएगा, वो प्लान वर्क करेगा। इसको बोलते हैं इनिशिएटिव प्रिंसिपल। और एक होता है स्पिरिट डीकॉप्स। स्पिरिट डीकॉप्स का मतलब होता है बेटा कि सबके बारे में अच्छा वर्क करना या सबके बारे में सोचना। बोल सकते हैं हम लोग कि यूनियन में स्ट्रेंथ होती है। स्पिरिट डीकॉप्स का एक मतलब ये हो सकता है कि यूनिटी से वर्क करना। यूनिटी से अगर आप वर्क करोगे, मतलब एक साथ एक मिल के वर्क करोगे, तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल इजीली अचीव हो जाएगा। ये कुछ फ्यूल्स के प्रिंसिपल है, मैं आने वाले लेक्चर्स में एक एक प्रिंसिपल्स को आपको डिस्क्राइब करूंगा। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, स्टे एट होम। नेक्स्ट लेक्चर जल्दी से प्रिपेयर होगा इस पर, ठीक है। थैंक यू सो मच बेटा।